Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Basute pali kapina kata bayana. Endo romu shandarabaha. Eko palina kanga bebedango gogopalaha. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit of God. Hallelujah. Hallelujah. Say, this is my Bible. Hold your Bible and say, this is my Bible. What the Bible says. I am that I am. The Bible says, I am blessed. I am blessed. This is my Bible. I believe what it says that I am. ये कहती है वो मैं ये मेरी बाइबल है ये मेरी बाइबल है, जो कुछ इसमें लिखा है जो कुछ इसमें लिखा है मेरे लिए वो मेरे लिए है, जो मंजिल ये बताती है जो मंजिल ये बताती है मैं- वो मेरी है, ये मेरी बाइबल ये मेरी बाइबल। जो ये कहती है जो ये कहती है मैं वो मैं वो, जो ये कहती है जो ये कहती है मैं मेरे लिए, सुने ना। यीशु के नाम से। Greet three people, मिलिएगा, greet three people and tell them God loves you. उनसे कहिएगा खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है, God loves you. खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है। Loves you. Loves you. God loves you. Loves you. He loves you. Hallelujah. हालेलुया, Praise be the name of the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Today, how many people are happy in the holy presence of God? खुदावंद की मुकद्दस ज्योति में कितने लोग आज खुश हैं? For Jesus. यीशु के लिए ताली बजाएंगे। You know, like greatest place ever और सबसे अजीम जगह हमेशा on this earth planet इस जमीन पर, इस सियारे जमीन, is the holy presence of God. वो है खुदा की मुकद्दस हजूरी। If you read Bible, और अगर आप कलाम को पढ़ें destiny is changed in the presence of God. और खुदा की मौजूदगी मंजिलें तब्दील कर देती है। Moses entered और जैसे ही मूसा दाखिल हुआ in the holy place. उस मुकद्दस जगह पर, Do you know what happened? फिर आप जानते हैं कि क्या हुआ? The killer became a prophet. और एक कत्ल करने वाला शख्स एक नबी बन गया। What is this? ये क्या है? The power of the presence of God. ये है ताकत खुदावंद की I'm हजूरी की। telling you, everyone, और मैं आप हर एक से कहना चाहता हूँ, try to experience the holy presence of God. और कोशिश करें कि तजर्बा हासिल करें खुदावंद की हजूरी का, Be in the presence of the और Lord. खुदा की हजूरी में मौजूद हो। Hallelujah. So today we are learning about the subject called My Life, My Hands. और आज जो हम सीखने वाले हैं उसका उन्वान है मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। Hallelujah. हालेलुया, My life, मेरी जिंदगी my hands. और मेरे हाथ। Praise the Lord. हालेलुया। Tell your neighbor, अपने साथ वाले से कहिए your life तेरी जिंदगी is in your hands. वो तेरे हाथों में है। Your life, tell your neighbor, your और life, साथ वाले से कहिएगा कि तेरी जिंदगी तेरे हाथों में है। your life and your hands. Hallelujah. हालेलुया। Book of Judges. और Qazat. खजात की किताब, This is the sixth book of the Bible. और ये छठी किताब है कलाम मुकद्दस की। This is a book of Judges. और ये है खजात की किताब। You will see many judges there. और आप बहुत से काजी यहाँ पर देखेंगे। This is a book after Joshua. और ये यशुआ के बाद वाली किताब है। When Joshua finished his assignment, और जब जोशुआ ने अपने काम को मुकम्मल किया, then you will see a lot of judges were there. और फिर आप देखते हैं कि बहुत से काजी वहां पर बर्पा किए गए। These people are the people
to judge the nation. और वो लोग थे जो कौमों का इंसाफ करते थे Yes, they do what is right. और वो what ये is wrong. करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको This फैसला book is करते not थे। about the और ये सारी teachers. किताब उस तमाम जो काजियों ने काम किए उससे मुतालिक है। So we will read from the chapter number 12, और हम 12 बाब से देखेंगे, 12, हम 12 बाब से देखेंगे and we will read first 3 verses. और हम उसकी पहली 3 आयत पढ़ेंगे। Yes. अब इस्राएल के लोग जमा होकर शुमाल की तरफ गए And the Ephraimite forces were called out and they crossed over to Zaphon. They said to Jephthah, "Why did you go to fight the Ammonites without calling us to go with you? We are going to burn down your house over your head." Mhm. Verse 2. इस्राएल के लोग जमा होकर शुमाल की तरफ गए और अफ्ता से कहने लगे कि जब तू बनियमून से जंग करने को गया तो हमको साथ चलने को क्यों ना बुलवाया, सो हम तेरे घर को कुछ समय जलाएंगे। Jephthah answered, "I and my people were engaged in a great struggle with the Ammonites. And although I called you, did not save me out of thy hands. When I saw that you would not help, I took my life in my hands and crossed over to fight the Ammonites, and the Lord gave me the victory over them. Now, why did you come up today to fight me?" दूसरी आयत। अफ्ता ने उनको जवाब दिया कि मेरा और मेरे लोगों का बड़ा झगड़ा बनियमून के साथ हो रहा था, और जब मैंने तुमको बुलवाया और तुमने उनके हाथ से मुझे ना बचाया, और जब मैंने ये देखा कि तुम मुझे नहीं बचाते तो मैंने अपनी जान हथेली पर रखी और बनियमून के मुकाबला को चला। खुदावन ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। आज के दिन मुझसे लड़ने को मेरे पास क्यों चले? Hallelujah. हालेलुया। In Hindi, that's sweet. तीसरी आयत. No. Chapter 12. Judges 12 and verse number 3. तब यह देखकर कि तुम मुझे नहीं बचाते हो, मैं अपने प्राणों को थैली पर रखकर अम्मोनियों के विरुद्ध चला और जोहब्बा ने उनको मेरे हाथ में कर दिया। फिर तुम अब मुझसे लड़ने को क्यों चढ़ आए हो? Amen. आमीन। Today, in this verse you will read, he said one thing. Look at his statement. और तीसरी आयत में आप देखते हैं कि क्या कहा गया है। आए हम देखें। He says, "I took my life in my hands." और कहता है कि तुम मैंने मुझे नहीं अपनी जान, जान हथेली पर रखी। your life is in your own hands. और आपकी जिंदगी आपके अपने हाथों में है Your destiny is your responsibility. और आपकी मंजिल आपकी जिम्मेदारी है। Number 1, पहले नंबर पर do not blame any auntie or any uncle. और किसी भी आंटी या अंकल को कभी भी आप इल्जाम मत दें। Do not blame any friend. किसी दोस्त को इल्जाम ना दें। Do not blame a father or a mother. अपने माँ बाप को कभी भी इल्जाम मत दें Do not blame anybody. और किसी को भी आप इल्जाम मत दें। In life, जिंदगी में your life is in your hands. और आपकी जिंदगी आपके अपने हाथ We में। will learn today from the life of Jephthah. और आज हम जो है अफ्ता की जिंदगी से सीखेंगे, We will learn हम सीखेंगे from his life. उसकी जिंदगी से। Jephthah was a man. और अफ्ता वो शख्स था, He was not born from a mother, जो कि माँ से पैदा ना हुआ not a legal wife. और वो एक जो है वो बीवी नहीं थी He was born from a prostitute. और वो एक खेल से पैदा हुआ। वो एक फाशा औरत से पैदा हुआ है। Jephthah. Number 1, पहले नंबर पर his own brothers, उस अपने भाई they said unto him, और जो उससे कहते थे "You are not from our mother. कि तू हमारी माँ के बदन से पैदा नहीं You हुआ are from prostitute." और तू एक फाहशा औरत के बदन से पैदा हुआ है। Now they said, "Leave our property and everything, go away from here." और अब उन्होंने कहा कि अफ्ता को कि यहाँ से तू ये जगह और हमारा घर छोड़ दे। What happens then? फिर क्या हुआ वहां? Jephthah leave everything. और उसने हर चीज वहां से छोड़ दी Nobody deliver him. और किसी ने उसको रिहाई नहीं दी।
किसी ने नहीं। There are situations in life. और जिंदगी में कोई ऐसे हालात आ जाते हैं Nobody is there to help you. और वहां पर कोई मौजूद नहीं होता जो आपकी मदद करे। Are we together? क्या मेरे साथ There है? are situations in life. और जिंदगी में कोई ऐसे हालात आते हैं You are standing in the position और आप उस जगह पर खड़े होते हैं like Jephthah. जिस जगह पर खड़ा था Nobody is welcoming you. और कोई भी शख्स आपको खुशामदीद नहीं बोलेगा Nobody is accepting you. और कोई भी आपको कबूल नहीं करेगा Just want you to go away from their lives. और वो कहेंगे सिर्फ हमारी जिंदगियों से चले जाओ Like Jephthah. और बिल्कुल अफ्ता की तरह। And the Bible says, और कलाम कहता है Jephthah gave up everything. और अफ्ता ने हर एक चीज छोड़ दी। No. नहीं, Bible says, कहता है Jephthah made one statement. और जफ्ता ने कुछ ये कहा He said, I took my life in my hands. और जफ्ता ने कहा कि मैंने अपनी जान हथेली पर रखी। There are situations. कुछ ऐसे हालात आते हैं, Do not blame your brother. अपने भाइयों पर कभी इल्जाम Do तराशी not मत blame करें, the teacher. अपने कभी भी उस्ताद पर इल्जाम तराशी ना करें, Blame anybody. किसी पर भी इल्जाम मत लगाएं Because these situations, क्योंकि ये हालात this rejection और ये आपका रिजेक्ट किया जाना is giving you a platform. और वो आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाता है Diagnose self-discovery. ताकि आप अपनी जात की पहचान कर सके कि आप क्या कर सकते हैं। Are we together? क्या आप मेरे साथ है? Jephthah, और था he was rejected by everyone और हर एक ने उसको रिजेक्ट कर दिया because of his But- mother, prostitute. और उसकी फाशा माँ की वजह से। Tell your neighbor, background. साथ वाले से कहेगा बैकग्राउंड। Life is spiritual. और जिंदगी रूहानी है। Tell your neighbor, life is spiritual. और साथ वाले से कहेगा जिंदगी रूहानी है। Life is spiritual. जिंदगी रूहानी है। The life आज जिंदगी is very spiritual. बहुत रूहानी है। Now this guy is a son of a prostitute. और अब ये जो रिश्ता है ये एक फाशा औरत का बेटा है। जो चीज है Which thing left Jephthah from his own inheritance? और जिसने उसकी तमाम विरासत से उसको अलग रखा, What was the thing? क्या है वो चीज? उसका माजी। He did not choose और उसने खुद तो नहीं था चुना to come from a prostitute. कि वो एक फाशा के बदन से पैदा हो। Are you understanding it? क्या आप समझ रहे हैं? Did he choose? क्या उसने खुद मुंतखब किया? But the brother said, लेकिन भाई कह रहे थे नहीं, no place for you. हमारे लिए कोई जगह नहीं है। But the father is the same. लेकिन बाप तो एक ही था। No mercy. कोई रहम नहीं हुआ, No mercy. कोई रहम नहीं हुआ। They say, because of your mother. और उसने कहा कि तेरी माँ की वजह से There are battles in life. और जिंदगी में कुछ ऐसी जंगें आती हैं, There are battles in life. जिंदगी में कुछ ऐसी जंगें हैं The reason of the battle और उस जंग की वजह is a background. वो होगा आपका माजी। I was listening one of the preacher. और मैं एक तालीम देने वाले शख्स को सुन रहा था, God bless him. खुदावंद उसे बरकत दे। He said one thing. और उसने एक चीज कही, Now we are a New Testament believer. और अब हमने अहदनामे के मानने वाले हैं No generational things. और कोई भी विरासती चीजें नहीं। If you start reading from Matthew chapter 1, और अगर आप मत्ती की अंजील के पहले बाब से पढ़ना शुरू करें, let's read it. और आए हम पढ़ते हैं, Let's read. आए हम पढ़े। So he said, और उसने We are- कहा a New Testament believer. कि हम नए अहदनामे के मानने वाले हैं And there is no things called generational things. No Oh. background. और इसको हम नहीं कह सकते कि नस्ली चीजें हैं, No background. कोई माजी नहीं। This is the genealogy of Jesus. और ये है यीशु मसीह का नस्बनामा। Tell your neighbor genealogy. और साथ वाले से कहेगा नस्बनामा। Son of David, the son of Abraham. Abraham, the father of Isaac, and the father of Jacob, and the Jacob, the father of Judah, and his brother Judah, the father of Perez. So why they are giving the whole genealogy? और क्यों यहाँ पर सारा नस्बनामा लिखा गया है? Why? क्यों? This is the New Testament. और According ये तो नया अहदनामा है। why they starting from background? क्यों यहाँ पर माजी से शुरू किया गया है? If the background of Jesus is not hidden, who are you and me? और अगर यीशु मसीह का माजी नहीं यहाँ छुपाया गया तो आप और मैं कौन है? His genealogy is still there. और अभी भी उसका नस्बनामा मौजूद है कलाम। From where he comes,
और कि वो कहाँ से आया है दुनिया में, So he comes from the tribe of Judah और वो यहूदा के कबीले से आया है to receive the kingship. और उस बादशाहत को कबूल करने, Same like the Jephthah. और बिल्कुल की तरह, See, his background is different from the background of Jesus. और उसका जो माजी है यीशु मसीह के माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। We together. क्या आप मेरे साथ है? Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? There are things in life. और जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती There are हैं, things in your life makes you in a big battle. और आपकी जिंदगी की चीजें आपको एक बड़ी जंग में डाल देती हैं, These battle और ये जंगें will be over और खत्म हो जाएंगी when you will take life in your own hand. और जब आप अपनी जिंदगी अपने अपने जाती हाथों में लेंगे, When you will say, और जब आप कहेंगे my brother gets divorced, और मेरे भाई को अगर तलाक हो, my sister gets divorced, और मेरे बहन को अगर तलाक हो, my marriage of my elder brothers is disturbed. और अगर मेरे बड़े भाइयों की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो, I'll take my life in my hand. और मैं अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लूंगा, Not me. मैं नहीं, No. My grandfather, और मेरे जितने भी अबाउजाद हैं, not talking about my son. मैं As अपने a person is saying, my grandfather, और अगर कोई शख्स कहेगा कि मेरे he अबाउजाद married 5 women. और इन्होंने 5 औरतों से शादियां की, And then you will see the things of many marriages. और कितना होता है शादीशुदा जिंदगियों में, And you have still desire to marry another woman. और आपके अंदर ख्वाहिश होती है एक और औरत से शादी करने की, But when you take your life in your own hands, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को अपने ज़ाती हाथों में ले लेते हैं, not me, मैं ही नहीं, not me. मैं नहीं, Are we together? क्या आप When मेरे you साथ take है? your life in your hands, जब आप अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेते हैं, when you study your background very well, जब आप अपना माजी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, you are easy to defeat heaven. आप बहुत आसानी से शैतान को हरा सकते हैं, Because he study you from your background. क्योंकि उसने आपके माजी को जान लिया है। Number one, पहले नंबर पर, when devil is trying to defeat you, he first disarmed you. और जब कोशिश करता है शैतान आपको हराने की, वो पहले आपको, जब शैतान आपको हराने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले आपको हराता नहीं, आपको बेहथियार करता है. He first disarmed you. और वो सबसे पहले आपको बेहथियार करते हैं। No. When you feel there is no prayer, और जब आप महसूस करते हैं कि कोई दुआ नहीं हो रही, there is an issue in prayer life. और दुआ या जिंदगी में भी मसला है, Feel like to pray. और महसूस करें कि दुआ महसूस करें. करें कि दुआ करनी है, Because he is disarming you. क्योंकि वो आपको बेहथियार कर रहा है। When you feel like there is no study the word Bible. और जब आपको महसूस हो कि मुझे कलाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, He's not defeating you. He's disarmed you. वो हरा नहीं रहा, वो आपको बेहथियार कर रहा है। And he will lead every tool from your life. और जब वो आपका हर हथियार आपकी जिंदगी से चुरा लेता है, Now he will easily defeat you. और अब बहुत आसानी से वो आपको हरा सकता है। Are we together? क्या मेरे Today I declare, let God restore your prayer life. आमेन। Let God restore your prayer life. और खुदा आपकी दुआया जिंदगी को बहाल करे। Hallelujah. हालेलुया, Can I get an amen? आमेन। Let God restore your study life. और आपकी कलाम मुकद्दस को पढ़ने की आदत को रिस्टोर करे। I decree and I declare, और मैं आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ, any issue in your life, और आपकी जिंदगी का अगर कोई भी मसला है any battle, और कोई भी जंग, they say, Lord, और आज कहिएगा खुदा, Lord, खुदा, I take my life in my hands. मैं अपनी जिंदगी अपने हाथों में लेता हूँ, Let me stand for my life. और आज मैं खड़ा हूँ अपनी जिंदगी के लिए In the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से। See, before he defeat you, उससे पहले कि वो आपको हराए, he disarmed you. आपको बेहथियार करता है, He disarmed you. वो आपको बेहथियार करता है। When you are feeling that I am not giving much, और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मैं नहीं दे रहा कुछ, that he is disarming you. वो आपको बेहथियार कर रहा है। When you are not studying and praying, he's disarmed you. और अगर आप कलाम नहीं पढ़े, दुआ नहीं करे, तो उसने आपको बेहथियार कर When you दिया। are not following Bible message, और अगर आप कलाम मुकद्दस की पैरवी नहीं करे, तो उसने आपको बेहथियार कर दिया, he disarmed you. और उसने आपको बेहथियार कर दिया। Now you are disarmed. और अब आप बेहथियार हो चुके हैं, You are now, he is now easy to और defeat. अब बहुत आसान है उसके लिए आपको हराना। So two people are fighting. दो लोग लड़ रहे हैं, Both have swords. और दोनों के पास तलवारें हैं, If I take one sword for one man, और अगर मैं उन दोनों में से एक की तलवार को ले लूं, what will happen to the next one? तो फिर दूसरे के साथ क्या होगा? Who will win? कौन जीतेगा? The man who have the sword. और वो शख्स जिसके हाथ में तलवार है।
When devil wants to defeat you, और जब शैतान चाहता है आपको हराना, he just remove you from the study class. और वो आपको हटा देता है आपकी Because the Bible स्टडी says क्लास से, क्योंकि the कलाम word of कहता है, God is a sword. क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा का कलाम एक तलवार है। No. Are we together? Before he defeat you, इससे पहले कि वो आपको हराए, then what you will say? You will blame. और क्या होगा फिर? आप इल्जाम देंगे, Oh, I don't have time. I am tired. I am doing job. और से बहाने बनाएंगे कि मैंने जॉब पे जाना है, मैं थका हुआ, और आप कलाम नहीं पढ़ेंगे। Is this God's thing? क्या ये खुदाई चीजें हैं? Is this God's problem? क्या ये खुदा के It's मसाइल your हैं? problem. ये आपके अपने प्रॉब्लम्स। Are we together? क्या मेरे साथ है? No matter what. और माने नहीं रखता क्या? Tell your neighbor. साथ वाले से कहिएगा, Shake him. और उसको हिलाएं और कहें, Don't compromise with your spiritual life. और आपकी अपनी रूहानी जिंदगी से कंप्रोमाइज कभी ना करो, Tell him that life is spiritual. और उससे कहें कि जिंदगी रूहानी है, जिंदगी रूहानी है। माजी Now, माजी the Bible said, God said to Abraham, और कलाम कहता है खुदा ने इब्राहिम से कहा, leave your father's house. और अपने बाप का घर छोड़ दे। Did you know? क्या आप जानते हैं? Tara was with him. और तारा उसके साथ था। Who was Tara? तारा कौन था? No. Who was Tara? तारा कौन था? Yes. Some people in life, जिंदगी में कुछ लोग, they left their father's house. वो अपने बाप का घर छोड़ देते हैं, They left everything, वो हर एक चीज छोड़ देते हैं, but still they take everything. लेकिन फिर भी सब कुछ उनके साथ है। Let me tell you. मैं आपको बताना चाहूँ, Abraham left the place, और इब्राहिम ने जगह को छोड़ा, but the father was still with him. लेकिन बाप कभी भी उसके साथ है, Father was there. और बाप उसके साथ है। What is the name of Tara meaning? और तारा का मतलब क्या है? Hindrance. और भटक जाना, Hello. He's taking hindrance with him. और वो भटक जाना अपने साथ लेकर आया। But you will read from chapter 11 to chapter 12. और आप 11 और 12 बाप में पढ़ सकते हैं। When Tara died, और जब तारा मरा, from that day God promised with Abraham and God appeared. और खुदा जाहिर हुआ, और कुछ दिन के बाद खुदा ने उससे वादा किया, Now he said, leave this place and go alone. और फिर उसने कहा कि इस जगह को छोड़ दे और चला जा अकेला, Leave your neighbors. और छोड़ दे अपने हमसाए को, Leave your relatives. अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। But one guy was still with him. और अभी भी एक शख्स उसके साथ है, Who was that guy? और वो शख्स कौन था? Lut was still there. और लूत अभी भी साथ है। There are battles in life. और जिंदगी में कुछ जंगे हैं That battles are not yours. जो आपकी अपनी जाति नहीं है, People are fighting with Lut. और जो लोग लूत से लड़ रहे हैं, Abraham went there to fight with him. और इब्राहिम को जाना पड़ा वहां पर, और वो उनके साथ लड़ना Can I पड़ा। get to witness? Many of you fight the battle that not belongs to you. और आप में से कितने लोग हैं जो ऐसी जंगें लड़े हैं जो उनकी अपनी नहीं है? Did you experience in life? और क्या आपने अपनी जिंदगी में You इसका fight तजर्बा the किया? battles. और आप जंगें लड़ते हैं That is not your battle. जो कि आपकी अपनी नहीं है, That problem is Lut's problem. और वो तो लूत के मसले थे, But you as Abraham, और आप इब्राहिम के तौर पर, you are going and fighting for और them. आपको जाना पड़ा, आपको लड़ना पड़ा। Today, let God deliver you from any kind of battle. और किसी भी तरह का माजी अगर आज आपको जकड़े हुए हैं, तो खुदावंद आज आपको उससे रहाई बख्शे। Are we together? Are you listening somebody here? क्या मैं सुन रहा हूँ किसी को? There is issues in life. और जिंदगी के कुछ मसाइल हैं Is not yours. जो कि आपके अपने जाति नहीं है, The fight of Jephthah was not Jephthah's fight. That is the issue of the background. और का जो मसला था वो उसका जाति नहीं था, बल्कि उसके माजी से जुड़ा था। He can't change Manakayana. वो नहीं तब्दील कर सकता अपने माजी को, He can't change his mother. और वो अपनी माँ को तो तब्दील नहीं कर सकता, She was prostitute. और वो एक फाहिश औरत थी, He can't change. और वो उसे तब्दील नहीं कर सकता था। But background is still there. लेकिन माजी तो अभी भी मौजूद था। But today I speak with prophetic tongue. और आज मैं अपनी नबूवती जुबान से आपके लिए Let बोलता God हूँ, deliver you any kind of background in life. हर तरह के माजी से खुदावंद आज आपको रहा करे। Are we together? क्या मेरे साथ है? The mother died with sugar. और माँ मर रही है अगर शुगर की बीमारी And से, the daughter went into a just early stage. और माँ इब्तदाई अरसा में ही बेटी को भी वही मसला हो गया, She got same thing.
और उसने भी वही चीज Yeah, वही yeah, yeah, बीमारी my ले ली mother have the same issues. और मेरी माँ को ये मसला था And you see with your own eyes, और आप अपनी आंखों से देखेंगे your mother died with very critical disease. अगर आपकी माँ मरी है बहुत बीमारी से बहुत बड़ी Many बीमारी people से are very comfortable with these issues. और इन मसलों से लोग बहुत आरामदेह हालत में उन्हें कोई फर्क नहीं This is पड़ता called the background is still following you. और इसका मतलब है कि आपका माजी अभी भी आपका पीछा कर रहा है That's why the blood of Jesus is given to change the blood of your background. और इसी वजह से यीशु मसीह का लहू बहाया गया ताकि आपके माजी को तब्दील कर सके Today I speak into your life. और मैं आज आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ Only loud voice और हर एक ऊंची आवाज speaking on your own life. और आपकी जिंदगी पे जो बोल रही है Let the voice of the blood, और लहू की जो आवाज है the blood of Jesus, और जो यीशु मसीह का लहू है shut down every voice. और हर एक आवाज को बंद करे In Jesus' name. यीशु के नाम से Are you listening, somebody here? और क्या आप सुन रहे हैं किसी My को यहाँ life, पर? my hands, और मेरी जिंदगी मेरे हाथों में background, माजी fights with them. उसके साथ लड़ रहा है Now there is a family. You will see there a guy called Saul. और आप एक खानदान को देखेंगे जो है साउल He's from Benjamites. और जो बेंजामिन के खानदान से था How many people know the story when the horses and the donkeys was missed? और कितने लोगों को उस कहानी का पता है जब साउल के गधे खो गए Huh? There was a man called Saul, और वहां पर एक शख्स था जिसका नाम साउल था और उसके गधे खो चुके थे and the donkeys were left. और उसके गधे खो गए Now the donkeys' responsibility was the father's responsibility. और अब जो गधों की जिम्मेदारी है वो बाप की जिम्मेदारी Now the mistake of the father, और बाप का अब ये गलती है he sent his son कि उसने अपने बेटे को भेजा because of his mistake, क्योंकि उसकी गलती थी because of him. और उसकी वजह से Horses left. कि वो गधे खो गए What happens next? फिर क्या हुआ आगे The son is बेटा going to find the donkeys. जा रहा है ढूंढने उन गधों को And what happened? फिर क्या हुआ The Bible says he crossed 5 lands, और कलाम कहता है कि उसको 5 जगह तब्दील करनी 5 boundaries. और 5 उसको सरहदें अबूर करनी पड़ी There are mistakes of the background. और माजी की गलतियां That's why you are suffering. और इसी वजह से आज आप अपनी जिंदगी में सफरिंग में Because you did not take your life in your own hand. क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को अपने हाथों में नहीं लिया Not me. मैं नहीं I am not Job. मैं अयूब नहीं हूँ No. In one day, एक दिन body become diseased. और जिस्म बन जाएगा बीमारियों का मरकज Wife left. बीवी छोड़ जाएगी Children died. बच्चे मर गए Property were taken over. और जितनी भी उसकी विरासत थी वो सारी खो ली गई Servants died. और उसके नौकर मर गए A lot of things happen in one day. और एक दिन के अंदर अंदर उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो So, are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं But when you take your life in your hands, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को अपने हाथों में ले लेते हैं let me give you one verse into New Testament. और नए अहदनामे से एक आयत हम पढ़ेंगे Jesus said, यीशु ने you know कहा what verse? Jesus said, यीशु ने कहा I have the authority और मुझे इख्तियार बख्शा गया on है my life. मेरी जिंदगी पर I can live my life or I can get back my life. और मैं अपनी जिंदगी दे भी सकता हूँ उसे वापस ले भी सकता हूँ This is called the Christianity. और ये है मसीहियत To have the capacity और आपके पास वो ताकत है to get back your original life. और आपकी असली जिंदगी को वापस हासिल You करें get back your health. और आप अपनी सेहत को वापस हासिल करें Get back your destiny. और अपनी मंजिल को वापस हासिल करें In the mighty name of Jesus. इन द माइटी नेम ऑफ Today जीसस I speak into your life. और आज मैं आपकी जिंदगी पर बोलती हूँ Let God give you grace. खुदा आपको वो फजल बख्शे Let God give you grace. और खुदा आपको वो फजल बख्शे Let God give you the grace. खुदा आपको वो फजल बख्शे Let God give you the grace. और खुदा आपको वो फजल बख्शे Let God give you Hallelujah. grace. और खुदा आपको फजल बख्शे Take your life back. और आप अपनी जिंदगी को वापस अपने Take हाथों में your लें beauty back. और अपनी खूबसूरती को वापस मौसूल Take करें your marriage back. अपनी शादी को वापस मौसूल करें Take your prosperity back. और अपनी खुशहाली को वापस मौसूल My करें life in my hands. और मेरी जिंदगी मेरे हाथों में Hallelujah. हालेलुया Move it together. क्या मेरे साथ है Rejection और आपका रिजेक्ट किया जाता is for self-discovery. है और वो होगा आप आपकी अपनी जात को पहचानना If you see many successful people, और अगर आप बहुत कामयाब लोगों को देखें you will see in their life और आप उनकी जिंदगी में देखेंगे somehow they were rejected.
और किसी ना किसी जगह पर उनको रिजेक्ट किया गया। How many people experience rejection? और कितने लोगों हैं आज तक जिन्होंने रिजेक्शन का सामना किया है? Hello? Nobody likes you. कोई भी आपको पसंद नहीं करता, Some will come at your face and say, "Hey, I don't like you. और कोई आएगा और आपके सामने आपको कहेगा कि मुझे तू पसंद नहीं है I don't like you." और मैं तुझे पसंद नहीं करती, This is called rejection. और इससे कहेंगे हम But some रिजेक्शन। people, they give, और कुछ लोग तो उम्मीद खो देते हैं, but listen. लेकिन सुने, But the wise people, लेकिन जो अक्लमंद शख्स है rejection, और उनके लिए जो रिजेक्ट होना है, rejection is from God's direction. और ये खुदा की तरफ से है जो आपकी रिजेक्शन है, Rejection is for direction. और जो आपका रिजेक्ट होना है वो आपके लिए अगली मंजिल की तैयारी है। Now listen, सुनिए, when someone rejects you, और जब कोई भी शख्स आपको रिजेक्ट करता है, this is a point you need to be your self-discovery. और ये वो उस नुक्ते पे आप आ जाते हैं जब आपको अपने आप की पहचान करने की जरूरत है। Can I talk to you? क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ? Now listen, सुने, self-discovery. और अपने आप की अपनी जात को पहचानना, They rejected you, और उन्होंने तो आपको रिजेक्ट किया है, but लेकिन God is directing you. खुदा आज आपको डायरेक्ट कर रहा है, They put a stone on you, और उन्होंने आप पर पत्थर मारा, but you need to take that stone as a step. और आपको उस पत्थर को एक कदम के तौर पर लेना If है। someone say you are failed person, और अगर कोई आपसे कहता है कि तुम तो एक फेलियर इंसान हो, take a step of failure. और उस फेलियर के कदम को उठाएं, Do you know what is the meaning of fail? और आपको पता है कि फेल होने का मतलब क्या है? What is the meaning of fail? फेल होने का मतलब क्या है? Huh? FAIL क्या मतलब है What is the इसका? meaning of fail? Huh? Yes. No succeed. No. The meaning of fail is not this. FAIL. Write down. FAIL. FAIL. Now write down. So F means first. Now second line. Attempt. A for attempt, I for in. In. I In. in, In. And L means learning. What does fail mean? और फिर फेल का मतलब क्या हुआ? First attempt in learning. और पहला कदम सीखने की तरफ। The fail means और फेल first होने का attempt मतलब in है learning. पहला कदम सीखने की तरफ। When you fail in life, it means you did first attempt. और अगर आप जिंदगी में फेल होते हैं किसी चीज में, तो उसका मतलब है कि आपने पहला कदम सीखने की तरफ उठाया। First attempt in learning. और सीखने में पहला कदम। And now people will also say you know. और लोग आपसे ये भी कहेंगे कि नहीं। If you call someone, sister, brother, oh, sister, brother, can you come to the church today? And he said no. और आप किसी को कॉल करें और कहें कि आज चर्च आओगे, और वो जवाब देगा नहीं। What is it? वो क्या कहेगा? Write down what is meaning of no. For you. और When you get no, और जब आपको ना का जवाब मिले, N means next. और N का मतलब है नेक्स्ट, O means opportunity. और O का मतलब है अपॉर्चुनिटी। It means someone is saying you get your best next opportunity. I'm not the best for you. और इसका मतलब है कोई आपसे कह रहा है कि अगली अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेहतर है, मैं आपके लिए बेहतर नहीं। That's why he said no. इसी वजह से उसने कहा नहीं। When you went to for job or any kind of relation or for marriage proposal, if the people says no, it means there is a next opportunity still waiting for you. और आप किसी भी जगह जाते हैं शादी के रिश्ते के लिए, जॉब के लिए, और अगर आपको कोई कहता है कि नहीं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार है। Hallelujah. We don't know. हम नहीं जानते। God moves His own ways. और खुदा खुद चलता है अपनी हरकत। But we want God in our kind of ways. और हम चाहते हैं कि खुदा हमारे तरीके से चले। Let's be together. क्या मेरे साथ है? Do you know the guy called Joseph? और आप जानते हैं कि यूसुफ एक शख्स था। How many people know Joseph? कितने लोग यूसुफ को जानते हैं? What happens to him? उसके साथ क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसको Yeah. Brothers, भाइयों ने they slapped him. उसको थप्पड़ मारे, They did what they want to do. और उन्होंने वो किया जो वो करना Now चाहते tell थे। me what is the reason? और आप क्या मुझे बता सकते हैं कि वजह क्या थी? क्योंकि उसका फादर उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसको सारी सम्मति। There was one issue. They first remove it. और Then पहले they beat him. एक मसला था जिसको उन्होंने हल किया और फिर मारा उसको। They removed from his body something. और उन्होंने उसके कुछ उतारा, उसके जिस्म से कोई कपड़ा उतारा।
The father gave him a very special cloth, coat of many color. और बहुत से रंगों का एक खूबसूरत कोट उसके बाप ने उसको बनाकर पहनाया था। The first coat they removed. और पहला कोट उन्होंने उतार दिया। Now अब coat is removed. अब कोट उतर चुका है। Now Joseph went to another place called in the house of. और अब वो एक दूसरी जगह पे गया There was a guy. और वहां पर एक शख्स था He was in his house जो कि उसके घर में था as a servant. गुलाम के तौर पर। Who knows his name? क्या कोई जानता है उसका नाम? He was servant in someone's house. और वो किसी के घर में नौकर के तौर पर काम कर रहा था। That guy and the wife, two people were living there. और वहां पर वो शख्स और वो औरत वहां पर दोनों मौजूद थे। Do you read your Bible? क्या आप अपनी कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं? Huh? Your hand on you. अपने हाथ सर पर हाथ Say, रखें। Lord Jesus, कहिएगा यीशु, oh Holy Spirit, ओम पाखरू, give me a good mind. और मुझे एक अच्छा जहन दे Give me a good mind. और मुझे एक अच्छा दिमाग दे। Remove garbage from my mind. और जितना भी कूड़ा करकट भरा है मेरे दिमाग में, Let the Holy Spirit enter. और पाखरू दाखिल हो मेरे दिमाग में, Give me the dimension of remembrance. और मुझे याददाश्त की डायमेंशन में लेके चल, In Jesus' name. यीशु के नाम। Did you get? 45. 45. मुझे याद आ गया है ना? So the first coat और पहला कोट removed by brothers. भाइयों ने उतार लिया The second coat, Namash, और दूसरा कोट is removed by Potiphar's wife. और पोतीफर की बीवी ने उतारा। 2 times दो दफा coat removed. उसका कोट उतारा गया। You started one business और आप एक कारोबार शुरू करते हैं and someone take over. और कोई उसको ले लेता है, You started another और आप एक दूसरा शुरू करते हैं and someone take it. और कोई ले लेता है। Story is not ended yet. और यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। There is a coat is waited in the house of Pharaoh. और फराउन के घर में एक कोट उसका इंतजार कर रहा था, And the coat of minister और वो था एक मिनिस्टर का कोट, to rule over the people who take his coat. और उन लोगों पर वो हुकूमत करे जिन्होंने उसका कोट उतारा The था। first coat और पहला कोट removed by brother. भाइयों ने उतारा, And then the brother need him. और फिर भाइयों को उसकी जरूरत पड़ी। I declare in your life. और मैं आपकी जिंदगी पे बोलता Those हूँ, people who hit you, और जितने लोगों ने आपको आज तक मारा है, let that people come for help into your life. और वो आपकी जिंदगी के लिए मदद के लिए उतरे In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Those people वो लोग who killed Jesus, और जिन्होंने यीशु को मारा, you will see. आप उन्हें In देखेंगे the last day, they will call him. और आखिरी दिन वो उन्हें बुलाएगा, Then people will call him और वो लोग उसे बुलाएंगे for help. मदद के लिए, Yeshua, please come. और वो कहेंगे यीशु आ हमारी He will मदद के come लिए, और वो आएगा with not shame cloth, और पूरी शर्मनाक कपड़ों के साथ नहीं, with just kind of undergarments. और ये आप कह सकते हैं कि उस छोटे से लिबास के साथ नहीं, They put Jesus on cross without clothes. और क्योंकि बगैर यीशु को मसलूब किया गया, But when he will come, और लेकिन जब वो आएगा he will come like a king. और वो एक बादशाह की तरह आएगा, He will trample them. और फिर वो इनको रोन दे। और फिर इनको रोन दे। Alabana Mashiach. Life is spiritual. और जिंदगी रूहानी है, They removed what clothes from there. और वो कपड़े उतार लिए गए वहां पर, Tell your neighbor mystery of the cloth. और कपड़ों की मिस्ट्री। Remove first. और पहला उन्होंने उतारा, Potiphar's wife removed second. और पोतीफर की बीवी ने दूसरा उतारा, And the third one, और तीसरा nobody removed. किसी ने नहीं उतारा। Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? The Pharaoh was waiting for him. और फिरौन उसका इंतजार कर रहा था, And he gave him another clothes. और फिर उसने एक और कपड़े बख्शे गए। Are we together? क्या मेरे साथ I है? declare into your life. आपकी जिंदगी पे मैं बोलता हूँ, When you lose things, जब आप चीजों को खो देते हैं, the best will wait for you in Jesus. और मैं आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ यीशु के नाम से, जो बेस्ट है वो आपका इंतजार कर रही है। Are we together? क्या मेरे साथ है? In life, there is also things called relationship. और कुछ चीजें हैं जिनको जिंदगी में कहा जाता है Relationship. रिश्ते, There are kinds of relationship. और कुछ किस्में हैं रिश्तों की। Write down seasonal relationship. और आप कहेंगे कि मौसमी रिश्तेदारी, There's a seasonal relationship. मौसमी रिश्ता, Write down seasonal relationship. मौसमी रिश्ता। When they get what they want from you, और जब वो हासिल कर लेते हैं जो आपसे उनको चाहिए होता है, they will leave. वो आपको छोड़ देते हैं।
This is called a seasonal relationship. और इसे हम कहेंगे Can I मौसमी get a रिश्ता। witness? क्या मुझे कोई यहाँ पर गवाह मिल सकता है? When they get what they want from your life, और जब उन्हें वो मिल जाता है जो आपकी जिंदगी से वो चाहते हैं, they will leave you. वो आपको छोड़ देते हैं। This is called a seasonal relationship. और इसे हम कहेंगे मौसमी रिश्ता। No. How many people experience? कितने लोगों का इस बात का तजर्बा है? You have their contact number, और आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, but they never texted you and they never ever met you. और वो आपको फोन नहीं करेंगे और कभी भी But दोबारा when, आपसे when नहीं you मिलेंगे। will open their chat, और लेकिन जब आप उनकी चैट को खोलेंगे, you will see from first message till last message, when they get what they want, और जितना अरसा था उनके पहले से आखिरी मैसेज तक जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए था, in that conversation you will see you give them what they want. और आप देखेंगे उस सारी बातचीत में कि जो आपने वो चाहते थे आप जब उनको दे दिया। Seasonal relationships. मौसमी रिश्ते, This is called as seasons of life. और इसे कहेंगे हम जिंदगी के रिश्ते, Season. जिंदगी के मौसम। So there are 3 seasons in life. जिंदगी में 3 किस्म के मौसम When हैं। you take your life in your hands, जब आप अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेते हैं you will see 3 seasons. और आप उसमें 3 मौसम Write down देखेंगे, the season of frankincense. और आप कह सकते हैं Frankincense. फ्रैंकिनसेंस का, Luban. लुबान का मौसम। There is a season of frankincense. और लुबान का मौसम, Do you know what is this? ये क्या है? When Jesus came into this world, और जब यीशु मसीह दुनिया में आए, the kings comes to give Jesus frankincense, और कुछ मजूसी आए यीशु को पेश करने के लिए Luban, लुबान gold, और सोना, and number 3, और तीसरे नंबर पर what? क्या? Myrrh. 3 things. याद है 3 चीजें। तोहफे ले आए सन? सोना, मुर, लुबान। हिंदी च भी आई है। सोना, मुर, और लुबान। सोना, मुर, लुबान. So they bring 3 things और 3 चीजें वो लेकर आए to show the season. मौसम को जाहिर करने के लिए। When you are in the season of frankincense, और जब आप लुबान के मौसम में होते हैं, what will happen? क्या होता है? Frankincense is a kind of perfume. और लुबान एक किस्म का खुशबूदार परफ्यूम है It attracts people. जो लोगों को आपकी तरफ उभारता है It attracts people. और वो लोगों को अपनी तरफ And the खींचता है। season frankincense will come. और जब मौसम आता है लुबान का, In your message and in your contact list, there is a lot of people who are connected with you. और आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में बहुत से लोग होते हैं जो आपके साथ राब्ता करना चाहते हैं। Many were there. वहां पर बहुत से लोग होते हैं This is a season of many people. और वो होगा बहुत से लोगों का You मौसम। have many friends, आपके बहुत से दोस्त होंगे, many relations, बहुत से रिश्तेदार, many going in and going out. और बहुत से आने वाले और जाने वाले, बहुत आना जाना होगा. A lot of things will happen. और बहुत सी चीजें हो रही होंगी। This is called a season of frankincense. और इसे हम कहेंगे लुबान का मौसम, Season of frankincense. और इसे हम कहेंगे लुबान का मौसम। But not all relation will लेकिन go through the season of gold. लेकिन तमाम रिश्ते सोने के मौसम तक नहीं जाएंगे, Some relation will come at the place of gold. और कुछ रिश्ते आएंगे सोने के मौसम में, They are very important to you. जो कि आपके लिए बहुत जरूरी और अहम है। Hello? All boyfriends are not your husband. और जितने भी आपके बॉयफ्रेंड्स हैं वो आपके शोहर नहीं हैं, All girlfriends will not your wife. और जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं वो आपकी बीवियां नहीं हैं। They come in the season of frankincense. और वो आएंगे आपके लुबान के मौसम में, And then you enter into the season of gold. फिर आप सोने के मौसम में जाएंगे, And then into the season of myrrh. और फिर मुड़ का मौसम आएगा। What is myrrh? मुड़ क्या है? They apply this thing on the dead people. और ये मुश्किल लगाया जाता है, हम मुर्दों को लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। When you are in the dead situation, और जब आप किसी भी मुर्दा हालात में होंगे, like Jesus Christ जैसे कि यीशु on मसीह the cross, सलीब पर, even his own disciple left him. और हत्ता कि उसके अपने शागिर्द उसे छोड़ गए, But the mother was there. लेकिन माँ वहां मौजूद थी The one disciple was there. और एक शागिर्द भी मौजूद। So there are 5,000 plus people in the season of frankincense. और फिर लुबान के मौसम में उसके पास 5,000 लोग मौजूद थे To follow him. कि उसकी पैरवी करने के लिए। But in the season of gold, लेकिन सोने के मौसम में, on the table of bread, और जब वो तोड़ रहा था रोटी, only 12 were there. लेकिन 12 थे मौजूद, The season of gold. और उसे कहेंगे सोने का मौसम। And when he entered into the season of myrrh, और जब वो मुड़ के मौसम में दाखिल हुआ, only 2 or 3 were there. और वहां पर 2 या 3 बचे, This is called a relationship. और ये है रिश्ते। If a person stands in your situation when you are dying, और जब आप मारे हैं तो कोई शख्स अगर आज आपके साथ खड़ा है, he is और वो है, frankincense. और वो लुबान के मौसम का It's नहीं, not a gold.
वो सोने के मौसम का नहीं है, He is the final relation. और वो है आपके मुर के मौसम का। Final relation means he will live his whole life with you. और फाइनल रिलेशन का मतलब है कि वो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजार सकता Are है। we together? क्या मेरे साथ This है? is called life in your hands. और जिंदगी आपके हाथों You में। need to be wise concerning relationships. और आपको चाहिए कि आप समझदारी से अपने रिश्तों को देखें, Concerning relations. और जितने भी रिश्ते आपके साथ जुड़े हैं, समझ आई? Frankincense. और लुबान, Rush होएगा. बहुत ज्यादा लोग होंगे। हाँ? And then gold. और फिर सोना, Only few people you will call, this is my family. और थोड़े से लोग जिनको आप कहेंगे मेरा खानदान, Family. मेरा खानदान। Relation. And when the myrrh comes, और फिर मोर का मौसम आएगा, what will happen there? फिर क्या होगा वहां? These people will go till last breath. और वो लोग आपके साथ जाएंगे आपकी अपनी हरी सांस तक। This is called a covenant relations. और जिसको हम कहेंगे कि अहद के का, अहद के रिश्ते, Covenanted relations. और अहद के रिश्ते। Are we together? क्या मेरे साथ है? How many people are learning it? कितने लोग सीख रहे हैं? Life in your hands. और जिंदगी आपके अपने हाथों में है। Don't invest your time in wrong relations. और गलत रिश्तों में अपना वक्त जाया मत करें, Don't invest. मत अपने ताल्लुक लगाएं ऐसे रिश्तों में। Then there are called friends. और कुछ लोगों को कहा जाता है दोस्त। How many people read the book of Job? और कितनों ने अयूब की किताब पढ़ी है? Did you read it? क्या आपने पढ़ा है? हाँ? पढ़ी हुई है? जी बताइए इधर सुना। बड़ी हाँ जी बड़ी पढ़ी है ना? बड़ी भी पढ़ भी ले फुल हुई सही फिर पढ़ी हुई है, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ ज्यादा पढ़ you will see in his life. और आप देखेंगे उसकी जिंदगी में They are friends. दोस्त है। दोस्त When everything he left, और जब हर चीज छोड़ गई, the Bible says कलाम कहता है his friend comes उसके दोस्त आए and they stay with him for 7 days. और 7 दिन तक उसके साथ रहे, They were doing conversation, और वो वहां पर बातचीत का सिलसिला जारी रहा, which is written there. और लिखा है सारा कुछ। They were speaking, and the Bible says they never speak anything. और वो बोल रहे थे, और कलाम कहता है कि उसने कुछ नहीं बोला। How is this possible? कैसे ये मुमकिन है? Your friend comes to you और आपके दोस्त आपके पास for आए 7 days, 7 दिन के लिए, और 7 दिन बोलना भी रहा है, तो बोलिया भी कुछ नहीं। What is this? Because Job was crying. क्योंकि जो अयूब रो रहा था, He was in the trouble. क्योंकि वो मसले में था। And the friends come and they say, और दोस्त आए और उन्होंने कहा Ah, अयूब ने भी किसी yes. ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨਾ ਵਾਪਸ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 7 ਦਿਨ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? What they said? क्या कहा उन्होंने? Mocking. और उन्होंने तमस्खर उड़ाया, Yes. मजाक हाँ। बना, जोक। हाँ. Just did these things 7 days. 7 दिनों तक। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਓ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਹਿ ਲੋ ਵੇਖਣਾ ਕਿਉਂ? गुस्सा ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। You will see. ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਾ what happens? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਲੋ ਬੋਲੋ। बर्दाश्त नहीं होता क्या करेंगे? शुरू कर देते बदला लेना शुरू कर So this guy, और ये शख्स, he patiently survived 7 days. और 7 दिन तक वो बर्दाश्त करता रहा हर चीज Friends, अपने दोस्तों की। hello. But if the creator comes, और अगर आए तख्लीकार, अगर खालिक खुद आए हम्म, and the people killed him and और- put him on the cross, और लोग उसे मारे और उसे सलीब पर टांग दें, and then they said, और फिर वो कहे save your life. कि अपनी जिंदगी को महफूज करो। We together. क्या मेरे साथ है? This is called life. और इसे कहते हैं जिंदगी। Job have a friend of this kind. और अयूब के इस किस्म के दोस्त थे, The mockery friends. और जो कि आप कह रहे हैं तमस्खराना दोस्त, जो मजाक उड़ाने वाले दोस्त। This is called relationship in life. आप इसे कहेंगे कि रिश्ता जिंदगी में। ये तुम समझ आ रहे? You need a friend और आपको उस दोस्त की जरूरत है, who can break somebody's roof और जो कि किसी की छत को खोले, and they put you in front of Jesus और वो आपको यीशु मसीह के सामने ले आए, for your paralyzed issue. और आपके जो मसाइल हैं, आपके पाहज होने के मसाइल हैं, उनको हल There करें। are friends Job have.
और जो दोस्त थे अयूब के, but there are friends of that guy who is paralyzed. और उस शख्स के जो यीशु मसीह के सामने जिसके दोस्तों ने उसको They उतारा disturb, they destroy somebody's house और उन्होंने किसी के घर को खराब किया सिर्फ उसको शिफा दिलवाने के लिए, just to receive healing ताकि वो यीशु मसीह से शिफा मसूल करे for his friend. उसके दोस्तों की वजह से। Relationship. रिश्ता। If your friend is taking you closer to Holy Spirit and God, और अगर कोई आपका दोस्त आपको पाकरू के और यीशु के करीब लेके जाता है, he is a good friend, वो आपका अच्छा दोस्त है good relation. और उसका अच्छा रिश्ता है। And if your friend is taking you to a new boyfriend, और अगर आपका कोई आपकी दोस्त आपको लेके जाती है कोई नए बॉयफ्रेंड के पास, and if your friend is taking you to another kind of drugs, और आपको अगर नशे की लत की तरफ लेके जा रही है, what is this? ये क्या है? An evil friend. वो होगा आपका बुरा दोस्त। Let God deliver you from this kind of relations. और इस किस्म के जितने बुरे रिश्ते हैं उनसे खुद आपको आजाद करे। Are we together? क्या मेरे साथ है? Your message और आपका पैगाम is your weapon, वो है आपकी जंग, and your anointing. और आपका मसा, Some of you, आप में से कोई you are slapped by brothers जो भाइयों से मारा गया है because of your anointing. और आपके मसा की वजह से, Your anointing brings attack on your life. और आपके मसा ने वो सारे अटैक्स आपकी जिंदगी पर लाए हैं। Look at the life of Jephthah. और देखें इफ्ता की जिंदगी को, He was a great warrior और वो एक अजीम जंगजू था, because of his this grace and anointing. और उसके इस फजल और मसा की वजह से Background was fighting, माजी उसके साथ लड़ रहा है। but when he take his life in his own hand, और लेकिन जब उसने अपनी जिंदगी अपने हाथों में ली, the youngers they disturb his life. और जो जवानों ने। जवानों ने उसकी जिंदगी को His brothers take him out from the house. और घर से बाहर निकाल दिया उसके भाइयों ने। But the Bible says the elders comes, और फिर कलाम कहता है कि बड़े आए, बुजुर्ग आए, बुजुर्ग आए, and they take Jephthah back. और अफ्ता को वापस लेकर And के, they make him a judge there. और वहां पर उसको काजी मुकर्रर किया, And they said, fight for us और उन्होंने कहा कि हमारे लिए लड़, because you are a great warrior. क्योंकि तू एक अजीम जंगजू है। You are warrior when you take your life in your hands. और तू इसलिए जंगजू है कि तूने अपनी जिंदगी अपने हाथों में ली। I'm talking to you when you take your life in your और hands. मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आप अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेते हैं, Fight the battles. कि अपनी जंगों को लड़ने के लिए, No matter what, ये माने नहीं रखता क्या, you will change the history of your background. और आप अपने माजी की तमाम जो तारीख है उसको तब्दील कर सकते I हैं। declare, let God make you a history maker. और खुदा आपको एक अजीम शख्स बनाए तारीख बनाना. तारीख बनाने के In लिए, the name of Jesus, यस्सु के नाम से। lift up your hands. अपने हाथों को उठाइए Let me pray for you. और आए मैं आपके लिए दुआ करूं। Mighty Father, और मेरे अजीम खुदा, I pray for every one of them. और इनमें से हर एक की जिंदगी पर मैं दुआ करता हूँ, Whatever they are facing और जो कुछ भी ये सामना कर रहे हैं जिंदगी में in the realm of relationships, और ताल्लुकात में, in the realm of war, और अगर जंग के जंग के आलम में, I declare, मैं इनकी जिंदगी पर बोलता हूँ, give them anointing in your hands. और अपने हाथों का मसा इनको दे, Give them anointing in their hands. और इनके हाथों में इनको मसा दे, Let God give you anointing. और खुदा आपको मसा बख्शे, Let God give you the self-discovery grace. और आपको अपनी जात को पहचानने का मसा बख्शे, Let God remove every kind of battle. और खुदा हर किस्म की जंग से आपको रहा करे, Let God release His grace for your life. और आप खुदा अपना फजल भेजे, In the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादर जलाली और बरकत नाम Let में, you be a warrior of your life. और आप अपनी जिंदगी के जंगजू शख्स हो, In the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के कादर जलाली और बरकत, Of Jesus. और यीशु के कादर जलाली In the बरकत, mighty name of Jesus. और उसके ताकतवर नाम। Amen and amen. आमीन और आमीन, आमीन, Hallelujah. हालेलुया। In the situation, और हालात में, some situations they will not stop और कुछ हालात ऐसे हैं जो रुकते नहीं, until you stop them. और जब तक आप ना उन्हें रोकें। There are situations in life. और जिंदगी में कुछ ऐसे हालात नहीं रुकते, Some attack will not stop. और कुछ आप पर हमले नहीं रुकते, Some issues will not solve और कभी भी कुछ मसाइल हल नहीं होते, until you stop them. और जब तक आप खुद ना उन्हें खत्म करें, Because your life, क्योंकि आपकी जिंदगी your hands, आपके हाथों में है, your destiny और आपकी मंजिल is your responsibility. आपका अपनी जिम्मेदारी है। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे, Shalom. आप सबकी सलामती हो।